रविंदर सर। हेलो। हेलो रविंदर सर। यस सर। इज आई एम हाँ। ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल एंड डॉक्टर अजीत सर, आर वी यू कैन सी मी? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। डॉक्टर अजीत, डायरेक्टर साहब नमस्कार सर। विनय सर इज ज्वाइन सर। सर सर आपका नमस्कार। माइक। कैसे सर? सर कैसे, बस बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ऑफ वेलकम यू। सर, वेलकम श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। I am also with the Climate Research, the founder, right? Because I am again board of director of Climate, which is one of the big institution on research. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई अपना जूम लिंक दीजिए। राइट, तो डॉक्टर अजीत, आर यू देयर? डॉक्टर अजीत, आर यू एबल टू लिसन मी? हेलो। हेलो। शैल वी स्टार्ट सर? हाँ, बस एक मिनट, डॉक्टर अजीत को ही बुला लेते हैं, 1 मिनट के अंदर जी रिंग जी। जा रही है। डॉक्टर अजीत, डॉक्टर अजीत, आप आ रहे हो? यस सर। तो यस सर। लेट स्टार्ट करते हैं सर। ऑल जी योर। जी सर, जस्ट जस्ट मिनट। हिंदी इंग्लिश मिक्स ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा ना? यस सर, यस जी सर। जी सर। ये ही डॉक्टर नमस्ते अजीत सर। सिंह। नमस्ते। ही- नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। सर, नमस्कार। हाँ। नमस्कार सर। सर लेट मी स्टार्ट। गुड आफ्टरनून all the dignitaries. I'm heartily welcome from the Sri Ram College of Pharmacy to Dr. P.K. Rajput sir, Dr. Ajit Singh sir, and I also welcome to the principal and director of our Sri Ram College of Pharmacy, Dr. Vinay Jain sir. I'm also welcoming all the faculty members who have joined with this session and all dear students who is a part of this webinar. Before starting our session, I am just introducing Dr. P.K. Saraswat sir by reading his bio. Dr. Rajput sir have a journey of 44 years, and he is a tremendous journey as started from the different streams. Distinguished cooperative right now, he is working as a senior vice president and the vertical head of sales and marketing at Cadla Pharmaceuticals. He visited 96 countries and delivered a talk on pharmaceutical brands in more than 40 countries during various international medical conferences and symposia. He is also a director of board of Climate Research Solution India, chairman of a board of studies of Syncova International Frontier Research, London, UK. Currently, as an advisor board member of various institutions, as a global speaker, leadership, mentor, and doing a many conferences and the lectures in different universities all over the globe. If we talk about his qualification, then he is completing his MBA, PhD, FIASST, FIAECT, FGCPR, and MLE from USA. With this qualification standard, he also completed 32 certification course for international universities across the globe. Continue with the process. His accomplishment began my journey as a medical representative
developing strong marketing acumen and the progress as a senior vice president in vertical head stream business growth across domestic and the global market for various divisions. 15 honorary doctorate on various streams, life member partnerships of leadership excellence, Harvard Star, Cambridge, Massachusetts, USA. Life member of the team, Indian Society for the Training Development, Vice President of MSME CIT in Pharma and other education sectors. As an authorship of the leadership, he is the sole author of many books, chapters, and also the different types of the papers. So on behalf of the entire team of the Sri Ram College of Pharmacy, I am mostly welcome the Dr. Rajput sir for his valuable time and to cooperate with this session. Over to sir. Thank you so much, Dr. Ravindra Mishra sir, Professor Ravindra Mishra sir. It is my pleasure. Thank you, Director sir, and all the faculty members and the students who are going to listen this our talk. Before I should start this talk, I would like to introduce Dr. Ajit Singh because he is again one of the serial entrepreneurs. He is the healthcare innovator, educator, and consultant. He is from Manipal. He has done his PhD in cardiology, and he is having his multiple firms by the name of Clemet and Curio. He is also a part of Advances the Multidisciplinary Research Health Organization, and he is having the Institute of IHEPR, Institute of Health Economics and the Policy Research, so London School of the Business Administration. So he is again one of the person who keeps on talking about so many things which is really required for the B Pharma and the PharmD and the M Pharma people. Before I should start my talk, I would request Dr. Ajit Singh to have his few words for the students, because ultimately the student will not only go in sales and marketing, they will go in the multiple segment also, जो कि आप कर रहे हैं. उसके बाद फिर मैं पूरा एक सिनेरियो लेके चलता हूँ. And fortunately, I am a board member of the Climate Research as well. तो जो डॉक्टर अजीत सिंह के साथ हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. तो डॉक्टर अजीत सिंह साहब, first to you, then I will start. Sir, thank you very much for this honor. Thank you very much, and thank you, Director sir, Principal sir, and all the staff. Ravindra sir, for the wonderful webinar. I was just seeing the flyer sir has sent to me, so it is, I think, lovely. And for the students, guys, I'm one of you. I'm also from the pharma background. I did my B Pharm, and then the first batch of Doctor of Pharmacy in India, PharmD. I completed that in 2014. Right, and now I'm quite old for all of you, because I have done PharmD 14 years back from now. 14 years back, and B Pharm almost 60. I mean, B Pharm almost 17 years back. Right. So for you guys, I have only one thing right now. Please learn and listen well, whatever the people come and teach you. I'm telling you, these things were not at when we were in the colleges, when we were in the pharma colleges, we did not have these facilities. Right. We did not have the webinars, we did not have the seminars, and we did not have even the guest lectures. We were like getting only one or two people, from some other colleges, or, from the university side, one or two special colleges who used to come for the, trainings and webinars or seminars in the colleges. We did not have these facilities. Right now, colleges are arranging a lot of things. The things have been, evolved a lot right now, so I think, that is the best time to learn and implement those things in the future. And as the topic today is artificial intelligence, I is going to, talk a lot, but I will say, use the AI with ethics. Okay, when I say ethics, ethics means like, see, it should not be harmful to, someone, and it should not be, giving a sense of cheating, like you have done something which is not, morally correct, right? So I mean, I may be looking like I'm telling you something which is, out of the box. People use Chat GPT for the talking also. People, discuss with the Chat GPT for the daily lives also. But you should not do it. You should just use the AI as your, servant. If I say in the right words, not even assistants, the servant who doesn't argue back, right? And along with that, AI has the immense utilization in pharma sector, from the drug development
to the marketing and in the all the phases of clinical trials and a lot of things sir is going to tell about HEOR, about policy making, about as you can see pharmaco economics modelings and analytics, right? So I think you should learn, and the best part what I'm learning now from the people, even till now I'm learning. I have right now 7 firms which we are running across the worlds. This modeling academy, what you are seeing in my background, is our recent venture, which is in India, Singapore, and UK, right? Academy of Pharmacoeconomics Modeling Analytics. But just, one thing you have to learn the basics also, along with the things which are going in the industry. Your basics should be very, very strong, right? Along with the basics, you should get whatever you are interested in, and not only interested in, whatever comes your way. Because see, learning is not going waste anywhere. If you think like, okay, today I'm learning this, I think this is not interested, I should not go for it, I should not go for this subject, I should not read this subject much. Everything is cumbersome and coming all together when you are in the market and you should know everything, right? So I'll not take much time. Thank you for this honor, sir. And I'll just say whatever sir is going to teach, please learn, please listen to him. He is very senior. He is my mentor, and I am working under his guidance always. So I think you got the gem to talk with you, to discuss the things with you. And yes, that's all from my side. Thank you for giving me this chance for speaking to you guys for 2 minutes. But yes, I'll say I'll definitely interact with you guys very soon if possible. Then now please go ahead with sir, and please learn well. I'm also here. I'm also here to learn. I asked the permission to sir also, like, sir, can I attend your session? So he was like, very, very most welcome. So I'll be also here learning as you are learning from him. So thank you very much, sir. Thank you, the management of the Sri Ram College of Pharmacy. Thank you very much for this honor. Thank you, sir. Thank you, you, sir. Dr. Ajit Singh Saab. Thank you so much. And we will be requesting Professor Ravindra Mishra to invite you, especially online on the HEOR and so many other things, because many students, they don't want to take the marketing part. They want to be in the different segment also, because it's a big globe is there, right? So where your Absolutely. expertise, because you have given a training to more than 3 lakhs students across, Yes. and they Yes. will be able to help. So Ravindra sir, with this हम स्टार्ट करते हैं, आज की जो है शुरुआत करते हैं। और जी। आज की शुरुआत ये मेरा एक मिनट में शेयर कर दूं सर। आर यू एबल टू सी? Yes, sir. Screen or not sure to. 1 सेकेंड सर, 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट, फिर से मैं एक बार शेयर करता हूँ। आ गया सर स्क्रीन? जी सर, now visible. बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ओके। तो हम इसको शुरुआत कर रहे हैं with blessings of माँ सरस्वती, राइट? बिकॉज वी ऑलवेज से जब हम शिक्षा होती है तो सरस्वती माता का ध्यान आता है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, गणेश वंदना और सरस्वती माँ के साथ हम शुरुआत करते हैं। I say welcome to the world of pharmaceutical sciences and healthcare, and I'm very happy that I am there with such young minds. So, my dear students, my dear young leaders, the globe has changed. नीले से लाल हुआ कोविड के टाइम पे, और अब जो है ये फिर चेंज हो रहा है और ये ग्लिटरिंग ब्लू हो रहा है। Glittering blue because the blue is the part of the AI. Color of the AI is blue. So everywhere you can say AI is working in blue. So let us see कि how the pharma industry is growing. देखते हैं कि pharma industry कैसे grow करती है। आज मैं आपको बात करूंगा, जो content है वो है कि a glimpse of IPM, Indian pharmaceutical market कितनी बड़ी है, opportunities in pharmaceutical industry, what are the career options and the skills are required. हर कैरियर का एक ऑप्शन होता है, हर कैरियर में ऑप्शन होता है, उसके लिए हर की स्किल्स डिफरेंट होती है, और हर पर्टिकुलर कैरियर के लिए सैलरी का क्या पोटेंशियल है, रोल्स क्या है एंड फ्यूचर स्कोप क्या है। फिर हम आएंगे एआई एंड कोडिंग फ्यूचर फॉर द कोड, बिकॉज जो आपका बेसिकली थीम है, कोडिंग फ्यूचर फॉर द कोड। AI uses in pharma industry, including the manufacturing, marketing, and even in the diagnostic. And the difference of AI versus us as a human role, which is very important. To Dr. Ajit ne bola, let AI should be your slave, he should be the servant,
like he should be helping us, not he should be making master for us. और रविंद्र सर, अगर मेरी कहीं आवाज ना आए तो मुझे बोल देना आप, ठीक है? जी सर अभी आ रहे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, जो अभी जो अप्रैल की फिगर आई है वो कहती है कि जो 10.3% इज द ग्रोथ ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वैल्यू वाइज 21,745 करोड़। अब इसमें 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 9 जीरो होते हैं। तो अगर आप इसमें जो है 9 लगाएं और 6 लगाएं तो ये क्रम हो जाता है 9 और 6 15। अब आप समझ जाइए, इतनी बड़ी ग्रोथ होती है, 10% से ग्रो कर रही है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है, समझ जाओ आप। और दिस इज समथिंग ग्रेट, बिकॉज अगर इतनी ग्रोथ है तो नेचुरली इंसान की भी ग्रोथ होगी। मैट क्या होता है? मूविंग एनुअल टर्नओवर टिल अप्रैल 26, 2.48 लाख करोड़ विद 10% ग्रोथ। मूविंग 2.48 लाख करोड़ है, मतलब 250 करोड़ लाख करोड़ का जो है ये टोटल टर्नओवर है 12 महीने के अंदर। 250 लाख करोड़ का टर्नओवर, सच ए ग्रेट थिंग विच इज देयर। और ये मैं नहीं बोलता, ये फार्मारेक बोलता है। फार्मारेक क्या है? इंडिया बिगेस्ट लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड B2B हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, biggest platform. They take out the thing. Now coming to the another point which is very important, which is the power of Indian pharma. हम इंडियन फार्मा की पावर की बात करते हैं। We supply 50 to 60% of the global demand of the various vaccines and 40 to 70% generic demand in US and 25% of all medicines in UK. तभी हमें बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एज ऑन टुडे। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये, और it is expected to grow by same 10 to 12% in the near future. और जब हम फ्यूचर में बात करते हैं और कहीं की बात करते हैं तो $1 बिलियन से बात करते हैं। It is going to be US $130 billion by 2030. तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इसकी जो है ग्रोथ, मिलियन के बाद आता है बिलियन, और $130 बिलियन की ग्रोथ होने वाली है। कितनी बड़ी चीज है ये। ग्लोबल मार्केट, मेडिकल डिवाइस की मार्केट बहुत बढ़ने वाली है। AR/VR के बारे में बात करूंगा, उसकी मार्केट बहुत बढ़ने वाली है। और मेडिकल डिवाइसेस अगेन एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 32 बिलियन बाय 2030। टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल बायोटेक एंड फार्मा वर्कफोर्स। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट बायोटेक का और फार्मा वर्कफोर्स। बिकॉज क्यों? और आने वाले टाइम में हम क्या होने वाले हैं वही मैं बताने वाला हूँ। और जो ये सब जो ग्रोथ है ये कैसे हो रही है? ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड डिजिटल थेरापेटिक्स। व्हेन आई से हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हमारे पास जो आज की डेट में जो वाईफाई है, जो हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन है, उसकी जो स्पीड है, वी कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, दैट द हाई स्पीड इज देयर। इंक्लूडिंग AI का the uses is going to be enormous. और my dear friends, as per our respected Prime Minister, by 2045 जब हम स्वर्णिम भारत की बात करेंगे, विश्व गुरु की बात करेंगे, तो हमारा ये मकसद है कि हम पावर ऑफ फार्मेसी हों। आज की डेट में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, बट पावर ऑफ फार्मेसी मीन्स पूरे वर्ल्ड के ऊपर हम रूल करने वाले हैं। क्यों? कैसे? इसलिए क्योंकि 2 से 5 साल के अंदर जितने भी पेटेंट्स हैं US में, UK में, यूरोपियन कंट्रीज में, वो सब एक्सपायर हो रहे हैं। तो जब सब एक्सपायर हो रहे हैं तो वो कहाँ आएंगे? एशियन कॉन्टिनेंट्स में आएंगे। और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया में इंडिया है। तो इंडिया में ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। और लेट मी टेल यू, हैदराबाद, अहमदाबाद तो ऑलरेडी है ही, गुजरात ऑलरेडी है, बट हैदराबाद इज गोइंग टू बी ए बिगेस्ट सेक्टर इन द बायोटेक्नोलॉजी एंड सो मेनी थिंग, नैनो मेडिसिन टेक्नोलॉजी। So that is a great beauty is there. अब लीडिंग अगेन कुछ और बताना चाहता हूं। इंडिया प्रोवाइड जॉब टू 10 मिलियन पीपल। फार्मा में 3 मिलियन हैं, मतलब 30 लाख लोग। हेल्थ केयर में 50 लाख लोग हैं, 5 मिलियन। ये इतनी हेल्थ है। और इंडिया इज अ होम टू 3000 फार्मा कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कि अप्रूव्ड है FDA से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और US FDA से। और 500 API मैन्युफैक्चर हैं जो कि अबाउट 8% ग्लोबल API इंडस्ट्री को देखते हैं। तो ये मत सोचना कि आपकी जॉब आने वाला टाइम एक जगह रहेगा, आपका आने वाला टाइम बहुत ज्यादा फैला रहेगा। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बता दिया, 12th लार्जेस्ट बाय वैल्यू एंड 3rd लार्जेस्ट इन एशिया से, 3rd लार्जेस्ट, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी द 1st लार्जेस्ट इन एशिया।
तो अभी हम क्या देखते हैं, ये पानी का ग्लास है, ये आधा ग्लास इसमें पानी पड़ा हुआ है लेकिन आधा ग्लास खाली। तो मैं इसको कोरिलेट करूंगा कि वेदर देयर इज अपॉर्चुनिटी और देयर इज अ चैलेंज। तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इज देयर। तो व्हाट डू यू सी, इट इज ए हाफ ग्लास एम्प्टी, हाफ ग्लास फिल। चैलेंज नहीं, चैलेंज नहीं है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी। अभी तो बहुत आगे बढ़ना बाकी है, बहुत आगे सीखना बाकी है। और तभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आप जैसे बी फार्मा एम फार्मा के लोग हैं, फार्म डी के हैं, दे आर गोइंग टू टेक केयर फॉर द फ्यूचर। तो व्हाट इज करियर, हम हमेशा कैरियर के बारे में बात करते हैं। आज जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये ऑनलाइन सेमिनार सुन रहे हैं, यू वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करियर। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ करियर इज द प्रोग्रेस, जो आपकी प्रोग्रेस है और जो आप एक्शन लेते हैं by you throughout your lifetime, which is those related to that person's occupation. आपका occupation है pharmaceutical industry, तो जो आप एक्शन लेंगे और जो प्रोग्रेस करेंगे पूरे लाइफ में, वो आपका करियर बनाता है। दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करियर। वी ऑल शुड नो कि करियर करियर है, तो करियर बनेगा कैसे, करियर ऐसे बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज क्या है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रिसर्च से। रिसर्च का सबसे पहले क्यों दिया, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं होगी तो नई मेडिसिन नहीं आएंगी। न्यू मेडिसिन विल नॉट कम, देन यू विल नॉट बी एबल टू टेक केयर फॉर द पेशेंट। और रिसर्च के साथ एसोसिएटेड बहुत सी चीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि रिसर्च का प्रोडक्शन होता है। अगर एक बार रिसर्च हो गई, प्रोडक्ट क्लियर हो गई, तो प्रोडक्शन में भी आदमी चाहिए, प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। प्रोडक्शन के बाद क्या है कि वो बना तो दिया माल, बट टू सेल वी हैव टू हैव एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। अब एंटरप्रेन्योरशिप आ गए तो फार्मा कंसल्टिंग एंड टीचिंग चाहिए। भाई अगर आपने किया तो हम ये डॉक्टर रविंद्र मिश्रा साहब क्या है, he is a professor there. There are so many academicians are there in your college, right? So consulting and teaching is a part of it, जिससे कि आप जो नई जनरेशन है उनसे सीखे, अंडरस्टैंड करें। उसके बाद क्या चाहिए कि माल बन गया, सब लोग हो गए, सब है, सप्लाई चेन चाहिए, क्योंकि माल एंड तक पहुंचे। अब सपोज करिए कि आपके ग्वालियर में कोई फैक्ट्री लगी। अब ग्वालियर की फैक्ट्री का मतलब नहीं है ना कि केवल आप जो है कि एमपी में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में यूपी में बेच रहे हैं। इट शुड गो टू द लास्ट मैन, टू द सोसाइटी। मतलब असम के लास्ट कोने में जाए और केरला के लास्ट कोने में जाए और जब श्रीनगर के लास्ट कोने में रहे, लास्ट गांव में रहे, ऐसा होना चाहिए। तो सप्लाई चेन वाला इस चीज को देखेगा। फिर क्या आता है, फार्मास्यूटिकल सेल्स। जब आपकी सप्लाई हो गई तो दवा बिकनी भी चाहिए। तो उसमें जो है सेल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सेल्स होगी तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, सैलरीज आएंगी हम लोगों की, हर आदमी जो आगे बढ़ेगा। फिर क्या है, फिर ये तो केवल सेल्स पेशेंट के पास हो गए। हॉस्पिटल आजकल कितने खुलने जा रहे हैं, क्लिनिकल फार्मेसीज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी इंसान चाहिए। फिर फार्माको विजिलेंस मैनेजमेंट, आज की डेट में एफडीए और यूएस एफडीए कितना स्ट्रांग हो गया है। तो वॉट एवर द मेडिसिन विच यू आर प्रोवाइडिंग, विच वी आर मेकिंग एज ए इंडियन फार्मा कंपनी, इट शुड बी एज पर द अप्रूवल ऑफ यूएस एफडीए। नॉट ओनली यूएस एफडीए, इवन आवर डोमेस्टिक एफडीए इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। तो फार्माको विजिलेंस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वहाँ भी इंसान चाहिए। फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, जैसे आई एम ए पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। प्रोडक्शन आ गया, सब कुछ आ गया, उस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है, किस सेगमेंट में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, किस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना है, तो दैट इज द फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। देन इट कम्स फार्मास्यूटिकल डेटा मैनेजमेंट एनालिटिक्स, एआई आ गया। तो द डेटा मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सो मच डेटा इज अवेलेबल, बट उससे एनालिसिस करके कैसे निकालेंगे, आउटकम कैसे निकालेंगे। हर पेशेंट के ऊपर तो सेम मेडिसिन चल नहीं सकती, तो एवरी पेशेंट विल हैव द डिफरेंट थिंग। So the segmentation is very important. So data management and analytics is a part and parcel. उसके बाद है HEOR, Health Economics Outcome Research. This is another very important thing, but ये आज से नहीं शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू है। जो प्रधानमंत्री की PMJ स्कीम है ना, वो कहते हैं 5 लाख रुपए में किसी भी इंसान का 70 से साल से ऊपर होगा ट्रीटमेंट हो जाता है। तो HEOR से मालूम चलता है वो इंसान किस डिजीज से सफर कर रहा है, किस हॉस्पिटल में जाए, क्या चीज देनी चाहिए, क्या मेडिसिन देनी चाहिए। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स आउटकम रिसर्च से 5 लाख में बड़ी सी बड़ी थेरेपी हो जाती है, जो कि एक नॉर्मल इंसान 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करता है बड़े अस्पताल में। तो ये सब चीजें हैं, ये इतना मल्टी फेसेट जो चीजें हैं जहाँ पे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी। अब आप इसको काउंट कर सकते हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो आपको टोटल 12 मिलेंगे। 12 में भी मल्टीपल स्ट्रेंथ है। तो ये मत कोई सोचे कि भाई मैं केवल एक प्रोडक्शन में जाऊंगा, ये मत सोचे कि मुझे एक
केवल रिसर्च में जाना है या सेल्स में जाना नहीं, आपको तो हर जगह जा सकते हो, विच इज इम्पोर्टेंट। रविंद्र सर ठीक जा रहा है? रविंद्र सर, सर जी सर, ठीक है? जी सर। ठीक है, फिर स्पीड ठीक है, स्पीड इज ओके। हाँ सर, स्पीड ओके। हाँ तो आप अपना चेहरा दिखाते रहिए तो मुझे अच्छा लगता रहेगा। मुझे लगता है कि हाँ कोई सामने बैठा हुआ है, बाकी मैं लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो लगता है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ना मुझे बहुत एनर्जी देता है। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। अब हम आते हैं टीचिंग एकेडमिक्स। तो हमने कहा देखो रविंद्र सर को क्यों मैंने बुलाया, क्योंकि इससे बेटर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में हो ही नहीं सकता। क्योंकि टीचिंग एकेडमिक्स में क्या है कि एम फार्मा एज असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी, रविंद्र साहब तो पीएचडी हैं, तो वो चाहिए। बिकॉज आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दिस प्रोफेसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, द कंसल्टेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द जॉब इन द फार्मेसी इज रिक्वायर्ड बिकॉज फार्मेसी के चीज बहुत एक्सपांड हो रही है। तो पीएचडी स्टूडेंट गेट एन एसोसिएट प्रोफेसर, एक्सप्लोर फार्मास्यूटिकल साइंस एंड कंट्रीब्यूट टू एडवांसिंग द फील्ड, ये टीचिंग एकेडमिक का है। लेकिन इसको करने के लिए आपको स्किल्स क्या चाहिए? पढ़ाई तो चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर टीचिंग। आई एम श्योर रविंद्र सर ये तो आप एग्री करोगे, बिकॉज एज ए प्रोफेसर राइट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचिंग के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, सही चीज पे सही टाइम पे, क्यों सर? डेफिनेटली सर, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेंड चेंज हो रहा है पढ़ाने का, अगर बिल्कुल आप बिल्कुल, स्किल्स में नहीं आएंगे तो फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। फैंटास्टिक सर, बहुत बढ़िया सर। और सेकंड थिंग इज पैशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। अगेन मैं आपसे एग्जांपल लूंगा कि जो चेंजेस होते जा रहे हैं हर 3 साल में, जो चीज होती है, तो जब तक हमारे प्रोफेसर जो रिसर्च नहीं करेंगे तो लेटेस्ट चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, फिर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? करेक्ट सर? जी सर। और थर्ड इज एबिलिटी टू गाइड स्टूडेंट इन एकेडमिक प्रोजेक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं राइट, तो हर स्टूडेंट की एक अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है। तो प्रोफेसर का काम होता है कि जैसे उनका काम क्या होता है, जो टेलर मास्टर का काम होता है ना, टेलर मास्टर के पास आप जाइए तो वो हर इंसान के हिसाब से उसकी शर्ट बना के देता है। करेक्ट? तो वो जाकर के हर इंसान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको सिंगाता है। तो दैट इज द वन ऑफ द ग्रेट रिस्पेक्टेड जॉब। गुरु का जॉब सबसे बड़ा जॉब है, तो इसलिए मैं गुरु को, कोई भी गुरु उसको सैल्यूट करता हूँ, यहाँ पे भी सब गुरुओं को सैल्यूट करता हूँ। रिटेल फार्मासिस्ट, जब आप जाते हैं फार्मेसी में दवा लेने जाते होंगे, जब अपने मदर फादर के साथ जाते होंगे, अभी खुद जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि व्हाइट कोट पहने हुए फार्मासिस्ट होते हैं, ड्रग स्टोर पे, सुपरमार्केट पे होते हैं, दे आर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन अक्रॉस राइट। उनके लिए क्या चाहिए स्किल? वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन नॉलेज, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सपोज करो कि H2 रिसेप्टर की कोई दवा देनी है या अल्सर की देनी है, तो क्या आपके पास रेनजिटिन है, फेमोटिडिन है, होमेपेराजोल है, रेबिपेराजोल है, क्या चीज है, क्या डॉक्टर ने लिखा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव के पेशेंट आते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, तो आजकल लोग फार्मासिस्ट पर्ची बना के देते हैं, एक सुबह एक शाम लिख के देते हैं, समझाते हैं खाली पेट लो, सुबह लो, शाम लो। तो ये जनरल आदमी नहीं कर सकता है, ये आप जैसे लोग कर सकते हैं। एक्यूरेसी इन प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो है कुछ डॉक्टर, सॉरी टू से, ऐसा पर्चा लिखते हैं कि सेकंड टाइम जो है खुद में ही पहचान नहीं पाते हैं कि क्या लिखा उन्होंने, बट फार्मासिस्ट जो है वो समझ में आ जाता है कि भाई क्या लिखना है। कस्टमर सर्विस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आता है आपका हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल फार्मेसी, तो मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेडिसिन, ये बड़ी हॉस्पिटल फार्मेसी, अपोलो जैसी आ गई राइट, मैक्स जैसी हो गई आपके, आई एम श्योर ग्वालियर में बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं, तो वहां पे दीज पीपल दे मैनेज द इंटायर थिंग। तो उसके लिए जो है उनकी मॉनिटरिंग जो है, ड्रग थेरेपी के, कंसल्टिंग विद द हेल्थ केयर, क्या प्रोडक्ट चाहिए क्या नहीं चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। और स्किल्स है ड्रग नॉलेज एंड पेशेंट काउंसलिंग, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेट, दे शुड नो कि हाँ पूरे स्टोर में क्या चीज अवेलेबल है, क्या चीज चाहिए क्या नहीं। सॉरी। देन अभी मैं आता हूं समथिंग डिफरेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्वालिटी एश्योरेंस, कुछ लोगों का मन होगा कि वो प्रोडक्शन में जाएं या क्वालिटी एश्योरेंस में जाएं, होता भी है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत स्कोप है। इसमें जो है आप, यू आर गोइंग टू हैव द कॉम्प्लायंस विद GMP इन परफॉर्मिंग क्वालिटी टेस्ट एंड रॉ मटेरियल, एंड यू ऑल्सो सी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यू आर द इंचार्ज फॉर इंश्योरिंग द इफिशियंसी, सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। इसके लिए क्या स्किल चाहिए? इसके लिए सिंपल स्किल्स जो है आपकी चाहिए, नॉलेज ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल।
नेक्स्ट मैं जाता हूँ एनालिटिकल केमिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. There is a difference between a quality assurance officer and the quality control manager. बहुत डिफरेंस है इसके अंदर भाई. डिफरेंस क्या है कि जो ये होता है ये कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. और एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, आई एम श्योर आपको पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, रूल 71 and 1 and 76(1), manufacturing activity should be taken up under the supervision of technical man. And who is a technical man? Not electrician, not an engineer, but a pharmacist is a technical man. Knowledge of drug formulation and regulatory affairs is very important. There is lot many things is there to study in that, and analytical skills, because you can analyze the thing. Everything is computerized, right? But आपको analysis झटके में आना चाहिए, बहुत बहुत important है. नेक्स्ट में आता हूँ आपके लिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट. अब एआई का जमाना हो गया है, तो आजकल जो है आप जानते हैं कोविड में भी लोग डायरेक्ट कंसल्टेशन करते थे. तो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का क्या जॉब है? एक्यूरेटली ट्रांसक्राइब ऑडियो फाइल जो भी आए और रिटन ट्रांसक्रिप्शन, अपडेट द मेडिकल रिकॉर्ड, डिजिटाइज द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, EHS, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम हर हॉस्पिटल में आज होता है, वो तब पूरा रिकॉर्ड लेते हैं आपसे. और ये जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट हैं ये हेल्थ केयर फिजिशियंस को भेजते हैं कि दिस इज द एंटायर थिंग व्हिच इज हैपनिंग देयर फॉर द अप्रूवल. ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी देते हैं डेटा, ये ऑनलाइन फार्मेसी को भी डेटा देते हैं. इनका बहुत बड़ा जॉब होता है. इसके लिए टाइपिंग स्किल्स बहुत फास्ट होनी चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी नॉलेज आपको आनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए बिकॉज आप सुनते हैं, अटेंशन टू एवरी डिटेल, थोड़ा सा भी डिटेल हुआ तो मिस हो जाएगा. लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए. इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली मेडिसिन इज इन इंग्लिश. हम भले ही हिंदी में बात करें बट वी हैव टू हैव दैट इंग्लिश पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटायर वर्ल्ड में इंग्लिश इज ए वेरी कॉमन लैंग्वेज. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर हिंदी, familiarity with the medical software, confidential ethics and time management. These are the things are there which is very, very important. Next, coming to clinical research associate. बहुत से लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है? मॉनिटरिंग एंड ओवरसीइंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. क्लिनिकल ट्रायल्स आजकल हो रहे हैं, आजकल AI बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं. पहले 14 साल लगता था, अब केवल 4 साल में हो. तो एक 14 साल वाला भी जरूरी है और एक 4 साल वाला भी AI रिलेटेड भी जरूरी है. दोनों में मॉनिटरिंग चाहिए. And ensure the trials meet international guidelines and national regulatory requirement, which is very important. अगर वो requirement नहीं होगी तो फिर वो out हो जाएगा, लाखों करोड़ों रुपए बेकार चले जाएंगे. Understanding of the clinical trial processes, which is very important. Good organization communication skills, which is really required. Knowledge of good clinical practice, GCP guidelines. जैसे GMP होता है, good manufacturing practice, वैसे ही GCP guidelines होती है, which is very important. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं. 1 मिनट सर, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं आपसे. 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सर. एक so sales and marketing is part and parcel of our job, which is important. Then coming to the what is it requires strong communication and negotiation skills. How to negotiate with the doctor in terms of the medical requirement, in terms of the right medicine to the right patient, which is there. How to negotiate with the retailers to keep your first time product which is available. How to generate the prescription. In-depth knowledge of the pharmaceutical product which is being sold, and ability to build relationship with healthcare professional. उसके लिए आपकी emotional intelligence बहुत जरूरी है. Coming to the next part, regulatory specialist and officer. What is to oversee regulatory documentation जैसे clinical trial approval permission, marketing approval permission, etc. ये भी बहुत ही important job है. आप देख सकते हो कि जो compliance वाला है इसके अंदर हर चीज है, standards है, governance है, regulation है, transparency है, policy है, law है, requirement. Everything is coming here in one. So this is the basic requirement, and this person is again very important. What is the skills are required? Knowledge of the drug formulation, manufacturing process and regulatory affairs. काफी डीप नॉलेज चाहिए इसके लिए. अगर आप एक्चुअली खूब खतरनाक पढ़ाकू है ना जो हिंदी में बोलते हैं, तो यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट, बिकॉज इन डेप्थ में आप जाते हैं, लॉजिकल आदमी हैं, एंश्योर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और पैरालिसिस नहीं करते, एनालिसिस करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है. तो दिस इज द राइट जॉब फॉर यू गाइस. फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, then monitoring and assessing the safety of pharmaceutical products, tracking and analyzing adverse drug reaction, and providing reports to the regulatory authorities to ensure drug safety after market launch. बहुत important product है. Government
बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गवर्नमेंट के साथ आपका लाइजन होगा। इसके लिए नॉलेज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR, एनालिटिकल स्किल्स टू इंटरप्रेट सेफ्टी डाटा, डेटा बहुत मिलेगा बट उसके अंदर जो सेफ्टी डाटा है उसको इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग सेफ्टी विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू 10वां पार्ट, स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, फार्मेसी, ड्रग स्टोर, कुछ भी शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं। आप ग्वालियर में सपोज करिए कोई है, जरूरी नहीं कि आप फार्मेसी या नेटमेट बन जाए, आप अपना 20-25 लोगों की एक चेन लेकर के शुरुआत कर सकते हैं और ग्वालियर के हर कोने में आपके नाम की वो चेन होगी, सप्लाई चेन होगी। AI POTS से थ्रू यू कैन इंश्योर दैट द मेडिसिन शुड बी गिवन टू द लास्ट पर्सन विच इज देयर इन एनी मोहल्ला, right, in a small of the village also, so that you can do it and you can make, you can do the marketing, you can become a distributor job, pharmacy chain मैंने बता दिया, अपनी खुद की हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए, मैनेजमेंट हेल्थ लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, टीम को कैसे बांध के रखना है वो होना चाहिए, उनको कैसे आगे बढ़ाना होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की नॉलेज और ड्रग रेगुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी तो बेसिक्स आपको आ रहा है, नेटवर्किंग होनी चाहिए और टेक से भी होना ही चाहिए। टेक्नोलॉजी तो आपको ज्ञान लेना ही लेना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है भैया। पहले तो शहर में 3 डिस्ट्रिक्ट में 1 ड्रग ऑफिसर होता था, अब तो हर जगह है ड्रग इंस्पेक्टर, हर एक शहर में 3-3 है, 4-4 है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, सेंट्रल में है। गवर्नमेंट एनालिटिकल लेबोरेटरीज आर देयर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर देयर, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, government institute lecturer and medical college demonstrator. These are the opportunities are there in the government, enormous opportunity. Then I told you about HEOR, health economics and outcome research. What it is the evaluation, the value of healthcare treatment and intervention. मैंने आपको PMJ स्कीम के बारे में बताया। Health economics analyzes the financial cost effectiveness and resource allocation of drug or medical procedure. ये completely tech based है, AI के ऊपर है ये भैया। Outcome research measures the actual clinical result and how a treatment impacts a patient's physical, emotionally, quality of life in the real world. तो RWI, real world data, RWD की जो हम बात करते हैं वहां से ये निकल करके आता है और यहाँ पे completely AI काम करता है। तो this is another one of the very important segment. इसमें 2 महीने का, 6 महीने का, साल भर के भी कोर्सेज होते हैं। अगर आपने इसमें जो है डिप्लोमा कर लिया, डिग्री ले ली, तो अगेन यू आर गोइंग टू बी अ मास्टर एंड यू कैन गेट द जॉब इन द गवर्नमेंट एज वेल। Analytical and studies skills, health economic and market access knowledge, research and evidence generation skills, and scientific communication stakeholder management skills. ये मैं आपको बता रहा हूँ, these are the 12 basic things are there where you can think कि आप करियर कहाँ बनाना चाहते हैं, जो आपको इसमें सुटेबल लगता है। आप ये मत सोचो कि केवल मेडिसिन की दुकान खोल ली या प्रोडक्शन में चले गए या मेडिकल रैप बन गए, नहीं, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा है। इससे ऊपर अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि यस देयर इज अ बिग थिंग इज देयर इन द वर्ल्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट गियर में विच इज इंपॉर्टेंट। क्या जो हम लोग, हमारा जो कैरियर था, जो बी फार्मा के बाद कुछ बच्चे MBA भी करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने प्लेन बी फार्मा एम फार्मा के बारे में बताया, बट विद MBA तो प्रोडक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसको कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं आप लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यू कैन बी ए मार्केटिंग मैनेजर, यू कैन बी ए फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजर, मेडिकल से शुरुआत करेंगे, सेल्स मैनेजर बनेंगे। मार्केट एक्सेस मैनेजर, यू विल बी हेल्पिंग द कंप्लीट मार्केटिंग टीम बिकॉज यू नो द ड्रग, यू नो द मैनेजमेंट, यू नो द मार्केटिंग, so you can be a marketing access manager. Supply chain manager बनेंगे to ensure that how efficiently the product is going to the manufacturing and the distribution both. So again, this is a real requirement. Clinical research manager में overseas clinical trial and research product. तो overseas clinical trials में क्या होता है कि आप यहाँ से बैठ करके US में जो कोई ट्रायल हो रहा है और यूरोपियन कंट्रीज में ट्रायल हो रहा है, being an MBA student, you with the management and the marketing, you can talk to them and you can ensure the thing and you can produce the research paper as well. Or regulatory affairs manager again ensures compliance with regulatory requirements for drug development and manufacturing. तो ये B Pharma MBA के लोग के लिए ये फ्यूचर है. This is all about the 13 various branches. Once a B Pharma guy will come out and wants to take the job. अब मैं कुछ आगे आता हूँ. Emerging trends for the graduate. इसका चाहे तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
These are the emerging trends: microbiologists, research scientists, clinical research associate, environmental microbiologist, pharmacologist, food technologist, biomedical science. मतलब अथाह है आपके पास, एक जगह की नहीं है, आप कहीं पे भी हाथ रखोगे यू हैव द जॉब अपॉर्चुनिटी। बट फॉर दैट आपको पूरा जैसे अर्जुन आई जैसे अपने को तैयार करना पड़ेगा, विच इज इम्पोर्टेंट। ये एक मैं आपको ये समरी दे रहा हूँ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि करियर, आपके क्या करियर है, रेगुलेटरी अफेयर्स में जाते हैं या R&D में जाते हैं, फार्माको विजिलेंस में जाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल अफेयर्स, फार्मा मार्केटिंग, फार्मा डेटा साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी क्या सैलरी पोटेंशियल है? आप इनिशियली 4 लाख से 3.5 लाख से शुरुआत करते हैं। ये मत सोचिए मेरी सैलरी बहुत कम, नहीं। शुरुआत करने के लिए, सीखने के लिए सैलरी कम नहीं होती, लेकिन यही जब आप आगे बढ़ के जाएंगे तो आपकी देखिए सैलरी 25 लाख, 30 लाख, 18 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, और इंटरप्रेन्योर है तो अनलिमिटेड है। बट उसके लिए क्या रूल्स दिए हैं वो क्लियर कट मैंने यहाँ मेंशन किया है, और उसका क्या स्कोप है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, यस। So these are the basic things are there which is very important. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, it is going to help you so that you should be knowing about it, that what are the things are there, what are the things is really required. Coming to the next point, AI in pharma coding the future for the core. अब मैं आता हूँ आपकी जो आज की जो टॉक है, मैंने आपको पहले ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बताया और क्या क्या फ्यूचर स्कोप है वो बताया। अब हम आपको एक स्टेप अहेड लेके जाते हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए हैं, राइट। और हर चीज हमारे साथ AI के साथ एसोसिएटेड है। तो जो डॉक्टर अजीत ने बोला था, जो हर लोग बोलते हैं, AI कैन योर बी अ सर्वेंट, AI कैन बी योर इनेबलर, बट AI कैन नॉट बिकम योर मास्टर, राइट। So coming for that, why are we talking about AI? वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। जो चीज आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो परसों नहीं होगी। इतनी तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है। चैट GPT 5.5 आ गया भैया, 3 साल के अंदर चेंज हो गया है। परप्लेक्सिटी आ गया है, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर, क्लॉडिया आ गया है, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग अप, राइट। तो AI ट्रांसफॉर्मिंग एवरी इंडस्ट्री। तो इसमें हेल्थ केयर एंड फार्मा अमंग द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज आते हैं बहुत। क्योंकि क्यों बेनिफिशियरीज है? क्लिनिकल ट्रायल 14 साल की जगह 4 साल के अंदर आ गए। डेटा जो मार्केटिंग मैनेजर्स लोग कितना टाइम लगा के पढ़ते थे, निकालते थे, वो 10 मिनट के अंदर जो है इसका चीज निकल के आता है। बट उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। फ्यूचर फार्मासिस्ट विल वर्क अलॉन्ग विद द AI टूल, एंड यू गाइस यू आर गोइंग टू वर्क विद द AI टूल, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। द क्वेश्चन इज नॉट विल AI इम्पैक्ट फार्मा, बट द क्वेश्चन इज हाउ प्रिपेयर्ड आर वी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो आपको इसके बारे में बात करवा रहा है। How prepared are we? You have to prepare, which is very important, because AI is not replacing the pharmacist. It is empowering them. आपको empower कर रहा है, और empower करना ये आपके हाथ में है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप ये समझ रहे हैं? I am sure now please be more attentive because I am talking about the AI which is more important. सर आवाज आ रही है सर? पक्का? जी सर। Okay, right sir. So my dear friends, my dear young student, right, let me tell you, global AI in the healthcare market was estimated was $39.34 billion in 2025। अब जो 2026 होगा तो क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं कि 20-30% की तो ग्रोथ आराम से आएगी। और ये जो है ग्रो करेगा CAGR में 2034 में 43.9%। इतना $1 बिलियन की ग्रोथ होने वाली है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कितना स्कोप है, और ये हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा वियरेबल डिवाइसेस, द वियरेबल मेडिकल डिवाइसेस प्रेडिक्टेड टू रिसर्च टू रीच बाय 66.9 बिलियन बाय 2030। बाप रे, इतना बड़ा स्कोप है। हम जो घड़ी पहनते हैं, चाहे अभी तो जो है 1000 रुपए में ही घड़ी आ जाती है जबकि फुल स्टेप लेते हैं, अभी तो आने वाले चश्मे आने वाले हैं, राइट, जिसके अंदर की जो है रेबैन के या डिफरेंट जो है एप्पल के चश्मे तो बहुत सस्ते होने वाले हैं, लोकल कंपनीज बनाने वाली हैं जहाँ पे कि आप हेल्थ मॉनिटर करो, वो आपको बताते रहेंगे। तो जो वियरेबल मेडिकल डिवाइस है, मतलब आपकी ऑनलाइन नर्सेज अवेलेबल है, वियरेबल नर्सेज आर अवेलेबल, दे विल टेल यू 5 बजे या मेडिसिन ले लो, खाली पेट खाना है खाना खा लो, खाने के बाद खाना मत खाओ, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो ये सब चीजों का बहुत स्कोप होने वाला है माय डियर फ्रेंड।
अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ कि कैसे इसका टोटल सिनेरियो चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ देखो आप, AI यूजेस इन फार्मा, नहीं, पहले फार्मा 1.0 था टू फार्मा 5.0, आजकल हम फार्मा 5.0 पे हैं। फार्मा 1.0 जब ये था, जब हमने भी नहीं ज्वाइन किया था, और जब 1970 में जो कंपनी 60 में कंपनीज आई थी, ट्रेडिशनल ड्रग बनाती थी, वो 2 बेडरूम हाउस में बनाया करती थी, कैप्सूल बना लिया, टॉनिक बना लिया एंड ऑल, वो बेचा करती थी। कैडिला ने भी ट्रेडिशनल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था 1956 में, जब वो घर में बैठ के ग्राई पाउडर बनाते थे और फिर बाद में मेडिसिन बनाया करते थे और उनका एक सांचे में डाल करके तैयार कर। फिर फार्मा 2.0 आया, ऑटोमेशन आया, मशीन्स आ गई, और 70s के बाद ऑटोमेशन शुरू हो गया, मशीन्स सब प्रिपेयर करने लगी, देखने लगी, साफ करना, भरना, ये करने लगी। फिर फार्मा 3.0 आया, डिजिटाइजेशन। ये डिजिटाइजेशन ये आया कि जब कंप्यूटर आया, जब 28 जब यह है 2000 या आया 1984 में जब कंप्यूटर आया तो डिजिटाइजेशन शुरुआत हो गई 84। फिर फार्मा 4.0 आया, ये 2015 के बाद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आई कि पीपल दे सेड कि नो, वी शुड नॉट हैव द वेस्टेज, वी शुड कम विद द क्लियर कट व्हिच इज इंपॉर्टेंट। ये 4.0 था। अब आ गया 5.0, AI रहेगा, आप टक 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 फीड कर दो, ह्यूमन इंटेलिजेंस रहेगी, एंश्योर क्या 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 फीड करना है, क्या नहीं करना है, एंड एवरीथिंग इज अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट बनाएगा, आप उसको मॉनिटर करो, आप मॉनिटर करो, आप फीड करो। तो इसमें क्या मेरा की मैसेज है आप लोगों के लिए, फ्यूचर फार्मा प्रोफेशनल्स नीड बोथ डोमेन नॉलेज एंड डिजिटल स्किल। तो मेरे दोस्तों, आपको जो है एक डोमेन नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। डोमेन नॉलेज का मतलब है आपकी पढ़ाई की ग्रिप बहुत ज्यादा होनी है, आपको बहुत इनहेरिटेड चाहिए, और आपकी जो डिजिटल स्किल्स की कंपैटिबिलिटी है वो बहुत होनी चाहिए। आज की डेट में बहुत से कोर्सेज ऐसे अवेलेबल हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपके प्रोफेसर बताएंगे, आप वो कोर्सेज जरूर से साइड में करिए, जो कि आपको हेल्प करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, AI यूजेज इन फार्मा, लेट मी टेल यू नाउ। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ कि बहुत मल्टीपल यूजेज है, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे इतना ये यूज है। Precision medicine, personalized medicine. It aims to provide targeted and effective medical intervention. ये कहाँ पे यूज होगा? ऑन्कोलॉजी में, कैंसर ट्रीटमेंट में, नेफ्रोलॉजी में, अल्जाइमर डिजीज में, साइकोसोमेटिक ड्रग्स ट्रीटमेंट में, समझ गए, डायबिटीज में होगा आज की डेट में, टाइप 1 टाइप 2। आपने देखा अभी जो है सिमेटाग्लाइड टैबलेट है सब, राइट, हाउ द थिंग्स आर गेटिंग चेंज। मंजूरो आ गया, उसने मार्केट ले लिया, एवरीबडी इज रनिंग, 200 करोड़ का मार्केट 1.5 महीने के अंदर हो गया। थिंग्स आर गेटिंग चेंज, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इज कमिंग, डिजिटल हेल्थ, improve healthcare delivery efficiency and patient outcome, they are the uses in pharma. हर घर में आज की डेट में जो है मॉनिटर सिस्टम है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। फार्मा को एपिडेमियोलॉजी, स्टडी ऑफ यूज, इफेक्ट एंड आउटकम ऑफ मेडिकेशन इन लार्ज पॉपुलेशन टू इवैल्यूएट द सेफ्टी इफेक्टिव ऑफ द ड्रग बोथ बिफोर एंड आफ्टर दे आर अप्रूव्ड फॉर यूज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी। कितनी बड़ी बात, ड्रग का बोथ बिफोर एंड आफ्टर दे आर अप्रूव्ड फॉर यूज बाय रेगुलेटर ने अप्रूव कर दिया, बट उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका आउटकम क्या हुआ। तो AI के साथ आप डेटा डाल करके आप एनालाइज करोगे और उसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी बताओगे। तो AI ह्यूमन पुट टुगेदर इज गोइंग टू गिव दिस पार्ट ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी। रियल वर्ल्ड डेटा मैंने आपको बोला था, RWD, हाउ ड्रग परफॉर्म इन द रियल वर्ल्ड सेटिंग बियॉन्ड द कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स का वाला छोड़ करके पेशेंट टू पेशेंट के ऊपर वो ड्रग कैसे परफॉर्म कर रही है, विच इज सच ए ब्यूटिफुल वे। अगेन AI विल ensure the data, provide the data, and you are, as a human, you are going to see the data and you are going to resign the data which is important. Pharmacogenomics, what is combine the pharmacology, the study of drugs and genomics together, right, to understand how genetic variants can impact an individual's ability to metabolize, respond to and tolerate different drug therapy based on a person's genetic profile. ये बहुत बड़ी बात देखी मैंने आज की टाइम में, जेनेटिकली ड्रग जो है कैसे इफेक्ट करती है, कैसे उसमें चेंज करती है। कभी हम बोलते हैं ना, अरे यार इसका तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो जो है इनको कैंसर था, इनके पापा को भी था, इनके दादा को भी था, इनके घर में तो ये चीज होती है, आती रहेगी। बट नाउ विद दिस फार्माकोजेनोमिक्स यू कैन चेंज दैट थिंग, जिससे आने वाली जनरेशन को चीज नहीं हो। जेनेटिक वेरिएंस कैन बी चेंज विच इज अगेन अ पार्ट। ये आप कब करोगे? जो PhD करने के बाद, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स
हर चीज का ये बी फार्मा की बात यूज नहीं कर सकते, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आगे चीज आएगी आपके सामने। नैनो मेडिसिन टेक्नोलॉजी, innovative solution for diagnosing, treating, preventing disease in the molecular and cellular level. When I talk molecular and cellular level, today there is a nanomedicine available, nanoparticles are available, nano drugs are available in there, which is on the target therapy. वो वहीं जाकर के वो काम करते हैं, हर जगह नहीं करते। तो टारगेट थेरेपी का मतलब क्या हुआ कि वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देते, इट वर्क्स ओनली वेयर इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज ऑल द ड्रग्स दे हैव द साइड इफेक्ट, यू नो। तो नैनो मेडिसिन दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन दैट हैज इमर्ज, जीनोम एडिटिंग, मैंने भी आपको बताया कि घर में खानदान में चला आ रहा था लेकिन अब नहीं होगा। सिंथेटिक बायोलॉजी, स्टेम सेल थेरेपी, immunotherapy and biologics, so lot many things are there which the AI can help you. Now coming to this additive manufacturing and pharmaceutical, इनको हम 3D printing बोलते हैं। आजकल 3D printing is revolutionizing the various aspects of the drug development. With that you can see that how the things are there. उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, पर्सनलाइज मेडिसिन की तरफ कैसे जाएंगे। तो 3D प्रिंटिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट इन द मार्केटिंग ऑल्सो। और बताता हूँ क्वालिटी कंट्रोल इन R&D, मैंने आपको पहले एक नक्शल के बारे में बताया, बट अब क्वालिटी कंट्रोल इन R&D में इंश्योर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी एंड कॉम्प्लायंस थ्रू आउट द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो आदमी इंसान वो मॉनिटर करेगा, बट विद द हेल्प ऑफ द AI कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, सेफ्टी चीज बना रहेगा, कॉम्प्लायंस बना रहेगा। तो ओवरऑल जब ड्रग डेवलपमेंट होगा तो देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस। ये नहीं कि आज डॉक्टर राम की ड्यूटी है, फिर शाम को डॉक्टर श्याम की ड्यूटी हो गई, तो सम चेंजेस आ गया, कुछ चेंज हुआ। नो, वंस यू हैव फेड ओनली यू हैव टू मॉनिटर इट। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन, master the preparation of scientific document required for regulatory submission. So there is no need to write so many pothas and all. You just give the right command, right prompt which बोलते हैं, and then the master preparation हो जाएगी scientific document की। तो वो right prompt देना भी आपको सीखना पड़ेगा, which is important. ड्रग रिसर्च के लिए हाउ AI एक्सेलरेट ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया था कि आजकल की जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो 14 साल की जगह 3 साल में आ गए, 4 साल में आ गए। तो AI एक्सेलरेट करता है ड्रग डिस्कवरी को, फास्टेस्ट करता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता, इमीडिएटली उसका डेटा है तो डेटा फिल करता है, लेके आ जाता है। वैक्सीन फॉर्मुलेशन, लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल वैक्सीन। हाँ, आई एम श्योर जब आप आज से 10 साल के बाद किसी फार्मा इंडस्ट्री में आप एक अच्छे लेवल पे होंगे, उस टाइम हर चीज के लिए वैक्सीन आ रही है। आप जानते हो ना आजकल हर उसके लिए एक वैक्सीन की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट। पीपल दे आर टॉकिंग दैट आपने वैक्सीनेशन किया, इसके लिए उसके लिए, सो मेनी थिंग्स आर देयर, राइट। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट नाउ द वैक्सीनेशन आर अवेलेबल, सो यू से दैट बचपन में ही वैक्सीनेशन करा लीजिए, राइट। एंड देन लाइक पोलियो थेरेपी, राइट, आप करा लीजिए तो आप विल बी सेफ फॉर दैट। Patent filing in pharma, understand intellectual property protection and patient strategies in pharmaceuticals. So already seeded है, and what is really required, you add the thing and you'll get the details. Nanotech in drug discovery, explore nanotechnology based system for targeted and controlled drug delivery. This is again a very important usage of AI in pharma. And then ethics in the clinical research. So it also helps you in learning the ethical principles. And the principles are there which is going to protect the participant and ensure the research integrity. You cannot change because वहां पे already seeded है, तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर ये चीज आप डाल लें, इसका आउटकम आपके साथ निकल करके आएगा। Only thing is you have to monitor the thing which is important. Sir, is it going okay? Yes, sir. It's going on. Thank you. Again, I want to tell you AI using drug discovery process. So learn the journey of identifying and developing new therapeutic drug candidates. तो आपके लिए अभी हमें बताया कैंसर के लिए हो गया, अल्जाइमर के लिए हो गया, डायबिटीज के लिए हो गया, अभी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए बात कर रहे हैं, राइट। सो मेनी थिंग्स आर देयर, हाउ टू टेक केयर फॉर द हार्ट एलिमेंट, right, to ensure that a person suffering with the diabetes and heart ailment, to ensure the thing which the right drug should be given so that there should not be any side effect, there should not be any kidney problem, it should be safe to the kidney and liver. So identifying this new therapeutic drug, which is again a requirement. Clinical trial design, पहले क्या होता था, एक हफ्ता 10 दिन लगता था ओहो क्लिनिकल ट्रायल तैयार करने के लिए। आप AI में डालिए और अंडरस्टैंड करिए कि हाउ क्लिनिकल स्टडीज आर प्लान, फट से 5 मिनट के अंदर आपको निकाल के देगा। एक समझ में नहीं आए दूसरा लीजिए, दूसरा समझ में आए तीसरा लीजिए, फिर आप अपना
इंटेलिजेंस लगाई, अरे ये क्लिनिकल ट्रायल्स का फॉर्मेट बहुत सही आया, लेट मी वर्क ऑन दिस, विच इज इंपॉर्टेंट. Dosage response study the relationship between drug dosage and biological response, which is again very important. तो इससे AI आपकी मदद करेगा और आपको हेल्प करेगा. New drug approval steps, learn the regulatory pathway from development to market authorization. पूरा regulatory pathway कैसे आपने स्टार्ट किया, राइट, एंड डेवलप किया और फिर मार्केट में कैसे लेके गया. तो AI is going to give you the complete protocol. There is no need that you should scratch your head. Put the things data in that and you will find that 3 महीना 6 महीना साल भर के अंदर पूरा बना देगा, रोड मैप तैयार करेगा. आपको मॉनिटर करना. ऑफ कोर्स adverse effect monitoring, understand the detection, assessment and prevention of drug related risk. Again, who is going to monitor? You are going to monitor, and AI is going to support you. So put the data and it will come. So assessment and prevention of drug related risk, it will show to you. Now again, it is not 100%, but with your intelligence, you are going to ensure the thing. Formulation development में, how drug products are designed for optimal delivery and stability. पहले लोग बहुत टाइम लगाते थे ऑप्टिमल डिलीवरी के लिए, 4 दिन 6 दिन हफ्ता, नहीं आ रहा. यहाँ आप डालो, बटन दबाओ, डिटेल्स डालो, everything should be there in compiled way and it will give you the response, which is important. Viability testing, assess the extent and rate at which a drug reaches systemic circulation. Again, this is very important. Then AI uses in pharma, target identification, discover method to identify biological target for therapeutic intervention. अब target identification क्या होता है? Suppose करो कि आप किसी को जो है breast carcinoma है या किसी को colon carcinoma है, so that is the target and how the lump जो form हो रहा है वहां पे क्या stage 1 का, stage 2 का, stage 3 का, stage 4 का है, कौन सा है. तो identifying that in stage 2 में क्या drug पड़ेगी, stage 3 में क्या लगेगी, stage 4 में क्या लगेगी. This is the way target identification is there. Not only this, my dear friends, आजकल जो 286 जो केक्स का आपका ये आता है, MRI आता है, वहां से आइडेंटिफाई हो जाता है. You put the data in that and it will show you the outcome of this. And as a doctor, when they see the entire outcome, they are able to find out, अरे यहाँ पे problem. Lead optimization, learn techniques to improve the efficacy, safety and properties of lead compounds. So again, this is a very, very important subject where you can make your career about this and you can lead the thing. Preclinical testing method, again, we require a people, right? To explore laboratory animal studies conducted before human trials. पहले क्या था कि आप एनिमल स्टडीज कंडक्ट करते थे, वेट करते थे 6 महीने के बाद, उसके बाद फिर उसका आउटकम आता था, फिर उसका ह्यूमन ट्रायल, बहुत लंबा जाता था. अभी आप put the data in that, give the results in that, and then immediately you can come out with the result. So it is going to shorten the number of years which were being unnecessary wasted. Now you are investing to shorten the number of years. Molecular docking क्या होती है? Understand the computational method used to predict drug target interaction. But before to it, let me tell you, preclinical testing method का ही part A है target identification, then lead optimization, then it comes up clinical testing method. ये तीनों लिंक है, लेकिन शुरुआत होती है TI से, target identification. Now coming to the molecular docking, understanding the computational method used to predict drug target interaction, how the drug is interacting with the target, right? Whether this drug is working or not. Some people they get, that give you example, some people they get the relief with pentaparazole, but some people they don't get the relief with that, they get the relief with rabeparazole. Some people they get the relief with H2 antagonist receptor Renzi. तो वो जो ड्रग प्रेडिक्ट ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, वो जो मॉलिक्यूलर डॉकिंग है ना, उससे मालूम चल जाता है कि इस टाइप का ये पेशेंट है, इसके लिए क्या चाहिए एंड वेयर इट शुड बी प्रोजेक्टेड. फार्माकोकाइनेटिक बेसिक्स वो तो आप पढ़ते ही हैं, राइट? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. तो बेसिक क्या है? स्टडी हाउ द बॉडी एब्सॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एलिमिनेट द ड्रग, एंड दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. यू स्टडी देयर, बट यहाँ पे जब आप आते हैं और आप किसी फार्मेसी वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पे इसका बेसिक्स का यूज होता है. सेम में जो फार्माकोडायनेमिक स्टडीज, जो फार्माकोडायनेमिक्स आप पढ़ते हैं, उसका हाउ द ड्रग प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट, स्पेशली आप लैब में जाकर के उसका इफेक्ट देखते हैं विद द यूज ऑफ आईटी. तो पढ़ाई आपके काम आई, AI का यूज आपका काम आया,
और फिर आपकी विजडम काम आए कि हाँ ये कैसा जो है ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, देन यू कैन हेल्प एंड यू कैन बियर। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इट इज नॉट न्यू, राइट। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक प्रिलिमिनरी स्टेज में जाएंगे तो ये आपके सीनियर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। उनसे आपको सीखना है, उनसे अपने को गैदर करना है। उनसे सीखने के लिए आपको AI का एक्वेंटेंसी होनी बहुत जरूरी है। Then patient recruitment method for identifying and enrolling the clinical trial participant. Lot many clinical trial my dear friends होने वाले हैं और हो भी रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया 2 से 5 साल के बाद इंडिया में जितने भी जो ड्रग्स हैं जो कि ऑलरेडी पेटेंट से एक्सपायर होने वाली हैं या हो जाएंगी, वो सब आने वाली हैं। तो वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमें चाहिए। तो पेशेंट रिक्रूटमेंट मेथड आप लोग को ही फाइनल करना है, विच यू आर गोइंग टू हेल्प while being in the laboratory. Data analysis and trials apply statistical method to interpret clinical trial outcome evidence. ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। स्टैटिस्टिक्स इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन। डेटा को आप कैसे पढ़ते हैं और कैसे चर्न आउट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने बीजेपी की और कांग्रेस की डिबेट या बीजेपी की और आपकी डिबेट देखी होगी। एक ही डेटा को दो लोग किस हिसाब से करके बताते हैं, समझ गए। अभी आपने जैसे देखा कि वहां पे बंगाल में क्या हुआ, एक ने क्या डेटा किया और एक ने क्या डेटा बताया। तो दैट इज द राइट डेटा टू इंटरप्रेट, इज द राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टैटिस्टिक्स, दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन एंड AI is going to help you what data are going to feed. AI in manufacturing. तो सर अब मैन्युफैक्चरिंग में चलता हूँ, सुनाई दे रहा सर? सर ह्यूमन AI कोलैबोरेशन। अब आप बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, राइट। तो कंबाइंस ह्यूमन एक्सपर्टीज विद AI ड्रिवन इनसाइट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, इट एंटिसिपेट्स द इक्विपमेंट फेलियर, रिड्यूसिंग द डाउन टाइम एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है। आप घर पे भी बैठ करके अपनी पूरी चीज को अपने आप iPad पे देख सकते हैं। एंड इन द बिग कंपनीज इट इज हैपनिंग। It is not essential that every time person should be there on the shop floor. They can see what the things are there. और कहीं पे भी अगर सपोज करिए कि ब्रेकडाउन हुआ तो immediately with this the help of the AI you can find out the thing. Smart quality control, AI powered vision system to detect defects and ensure product quality. Again, आप सब में नहीं जा सकते हैं, तो AI powered system जो आपका पूरा लगा हुआ है उससे आप एनालाइज कर सकते हैं, अरे मेरा यहाँ डिफेक्ट आया, मेरा यहाँ। अब मैं आपको एक बताता हूँ छोटा एग्जाम्पल। अगर किसी के घर में सपोज करिए, सपोज के आपके कॉलेज में CCTV कैमरा लगा हुआ है, राइट, और CCTV हर जगह लगा हुआ है, बट जो ऑपरेटर ने देखा अरे वो जो है 14 नंबर का कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो मुझे वहां से कैसे मालूम चलेगा वहां क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कॉरिडोर में। तो विद दैट ही कैन डिटेक्ट, अरे मैं 14 नंबर का कैमरा की प्रॉब्लम, इमीडिएटली ही विल गो एंड फाइंड इट। सो दैट इज नॉट ए स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल। Sitting at one place, sitting in US, you can see what is happening in your entire area. आपके डायरेक्टर साहब हैं, तो अगर उनके मोबाइल में या उनके iPad में पूरे कैमरेज की फीडिंग है तो वो बैठ करके कंट्रोल कर सकते हैं कि अरे मेरे वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दैट इज द ब्यूटी। सेम थिंग इज रिक्वायर्ड द स्मार्ट क्वालिटी कंट्रोल while manufacturing. Real-time process optimization, continuously monitor, adjust manufacturing parameter for maximum efficiency. You know that still this machine can produce more, तो आप उसको जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मशीन ने प्रोड्यूस किया, फिर बैठ गए, फिर इसको क्लियरेंस हुआ, बट आपको मालूम है मशीन की कैपेसिटी तो 50,000 कैप्सूल एक घंटे में निकालने की है। So with that you can feed the thing which is important. You will not wait. You will make the things everything ready. So automated हो जाएगा. Robot will making it, but you are supposed to monitor it. Personalized medicine production for patient specific therapies and treatment जो मैंने आपको बताया जो आने वाला है. Digital twins replace the manufacturing process for stimulation and performance improvement. It is going to help because digital twins is a real requirement. And then supply chain intelligence. It always enhances the demand forecasting. पहले ये होता था कि भाई कहीं भी माल बेच दो, एक्सपायर हो जाता था, मालूम नहीं चलता था कब एक्सपायरी है। बट इट इज गोइंग टू हेल्प यू कि साउथ में, केरला में वो माल कितना गया, कितना बिका, कैसे उसको मॉनिटर करें, नेक्स्ट मुझे भेजना है कि नहीं भेजना है। तो 6 महीने एडवांस आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, 6 महीने एडवांस आप इन्वेंट्री अपनी जो है मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द AI. AI विल टेल यू नहीं ये माल मत मंगाइए, ये मंगाइए, और लॉजिस्टिक की प्लानिंग कर सकते हो।
Regulatory compliance support, automate documentation, monitoring and compliance checking, sustainability enhancement, reduces waste, energy consumption, environmental impact, because AI will tell you that how much energy is required. So don't waste the energy for the entire thing. यहाँ पे इतनी जरूरत है और इतनी environment को आप protect कर सकते हो, impact आ सकता है. Data analytics के बारे में मैंने आपको already बताया. Faster batch release, improve testing and review process. फटाफट ऐसे टेस्ट करता है. आप डालो डिटेल्स, AI will give you the things within 1 hour of time. Otherwise, वो साइंटिस्ट लोग जो है जाकर के लैब में देखते थे, चेक करते थे, बताते थे, डिस्कस करते थे, वो आगे भेजते थे. नहीं, AI will take care, only you have to monitor. It assists the employees with intelligent recommendation, training and option support. So that's why we call Industry 5.0 outcome in pharma. Smart manufacturing, better quality, greater agility, enhanced sustainability and human-centric intervention. That is the beauty of AI in manufacturing. अब रहा भैया मार्केटिंग, जो हम लोग हैं मार्केटिंग की. अब इसमें चेंज आ गया है. डिजिटल वर्ल्ड हैज चेंज. AI to AR to VR and XR, augmented reality to the virtual reality and a mixed reality. It completely has been changed, right? MR को XR भी बोलते हैं. तो रोल ऑफ AI इन फार्मा इंडस्ट्री में कि फार्मा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पहले लोग 45 दिन पढ़ाया करते थे, लेकिन विद दिस VR यू कैन हैव द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे बॉडी में रिएक्ट कर रही है. आप HCPs जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको आप एजुकेट कर सकते हो. सर ये मेरी ड्रग है, ये अगर पेट में जाती है तो कहाँ डिसॉल्व होती है और कहाँ इसका इफेक्ट आता है. इट इज अ किडनी प्रोटेक्टिव. पेशेंट को आप एजुकेट कर सकते हो और वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, गांव की भाषा में बता सकते हो कि भाई अगर आपको कैंसर है तो घबराओ नहीं, ये ड्रग आपके वहां जाके काम करेगी और बाकी चीज नहीं खराब करेगी. अप टू द स्टेज 3 एंड स्टेज 4 नाउ कैंसर कैन बी ट्रीटेड. डॉक्टर्स को OT में असिस्ट करता है. कैसे असिस्ट करता है? द पर्सन who is sitting in Gwalior and he can take the assistance from the person sitting in the US. Enhances medical training methods and improve the existing medical education. And इसमें क्या है कि हर चीज को आप फील कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो with the help of VR, virtual reality. You can see 206 bones separately. कितनी बड़ी बोन है, कहाँ पे है, कैसे है. अदरवाइज आपको आदमी को आपकी डमी आपको डेड बॉडीज में जाकर के उसका इन्वेस्टिगेशन करके वो करना पड़ता है. नो, विद द हेल्प ऑफ द AI यू कैन सी द एंटायर थिंग. Diagnostic, VR for operational assistance and lab training. Such a great thing is happening. With the help of VR virtual reality you can have the complete data. Diagnostic से डिटेल्स में आप पूरी प्लानिंग कर सकते हो, कस्ट और पेशेंट की प्लानिंग कर सकते हो, मेडिकल ट्रेनिंग दे सकते हो और रिहेबिलिटेशन में भी आप सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो. So applications of AI, possible applications of artificial intelligence, you can see that it is in robotics and soft robotics, Internet of Things है, image analytics में. मतलब आप देखो AI कहाँ नहीं है. AI is a part and parcel of everything which is in the world. Now 3 more slides. Benefits of artificial intelligence. New inventions होती रहेंगी दोस्तों. चेंज हो रहा है वर्ल्ड. जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है बेसिक वो आपको समझना पड़ेगा. स्मार्ट डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. AI तो आपको दे देगा, बट स्मार्ट डिसीजन मेकिंग जो आपको करना पड़ेगा कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है. इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस. अगर आप आज यूट्यूब में या अगर आप कोई अगर सपोज करो कि आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट मंगाते हो तो देखो उसके बाद 6 दिन तक आपके पास सेम प्रोडक्ट के बारे में आ रहा है. कस्टमर एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपको जो है हेल्प करता है. मेडिकल एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस में आपकी हेल्प करता है. एंड सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. जो नहीं समझ में आता है को AI को दे के देखो और फिर अपनी विजडम लगाओ. और जो बार बार का जो जॉब है वो AI खत्म करता है, वो एक बार में क्लियर कर देता है. और एरर भी बहुत कम होते हैं, बट यू हैव टू पुट द ह्यूमन इंटेलिजेंस विच इज इम्पोर्टेंट. तो व्हाट AI कैन नॉट रिप्लेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब कुछ जब कर सकता है तो कुछ तो कमियां होंगी. यस, AI कैन डू एनालाइज द डेटा, find the pattern and automate the task. It is done in the nutshell, right? But what it cannot do, what only you can do as a human, show empathy. जो कहते हैं दिल का रिश्ता दिल से. Exercise judgment. Judgment can be of yours. AI can give you a multiple option. Ethical decisions can be yours, which again is very important. And the trust की जो बात होती है वो AI trust नहीं बोलता.
एआई को तो 24 घंटे आप काम करा दो, एआई में कोई दिल दिमाग की बात, मतलब दिमाग है, दिल की बात ही नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लेता। बट जो ट्रस्ट है, ह्यूमन ट्रस्ट, वो आप कर सकते हो। So that is the human advantage which is very important. So I am sure that in the coming time AI is the real important part. What is the building blocks of the excellence? हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम एक्सीलेंस की तरफ काम कर सकते हैं। पहली चीज है आपकी डिग्री, फार्मेसी क्वालिफिकेशन, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी, जो भी करना चाहते हैं, पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खूब पढ़िए, जितना पढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। खूब पढ़िए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये आपके जो 4 साल, ये 6 साल जो आने वाली पीएचडी टाइम है, ये आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को चेंज करेंगे। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ये भी रिक्वेस्ट है कि आपके माँ बाप ने पैसा दिया होगा कॉलेज में आने के लिए, यूनिवर्सिटी में आने के लिए। किस लोगों ने बड़े अच्छे से दिया होगा, किस लोगों ने बड़े मुश्किल से दिया होगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करें। तो आप एक तरह से कर सकते हैं कि अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करके, पढ़ करके, इन डेप्थ नॉलेज लेकर के, स्टॉक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस मास्टरी कर लो इसमें दोस्तों। जैसे लोग कहीं कहीं डिफरेंट उसमें मास्टरी करते हैं। अगर आपने प्रोफेशन चुना है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चुना है, तो उसमें मास्टरी कर लो, स्किल्स को डेवलप कर लो दोस्तों। कम्युनिकेशन, प्लीज प्लीज डेवलप योर कम्युनिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डेवलप योर स्पीकिंग पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डेवलप योर इंग्लिश स्पीकिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। critical thinking, how to think in a different way, clinical understanding, which I requested you, is very important, because out of all of you whosoever are listening, सब लोग तो मेडिकल में बनेंगे नहीं, कुछ तो कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे। 85% विल बी ए पार्ट ऑफ इन हाउस, और जो 15% है जो मेडिकल रैप या प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं, वो जो आउट ऑफ द हाउस में रहेंगे, जो कि वह फील्ड में रहते हैं। तो डिफरेंस इज देयर, तो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा लिटरेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज डू लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड शॉर्ट कोर्सेज। प्लीज अटेंड सच वेबिनार एंड सेमिनार जहाँ पे आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। प्लीज डू इट। और एआई, डिजिटल हेल्थ, एआई इन ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल डाटा एनालिटिक्स, फार्माकोविजिलेंस एंड डिजिटल हेल्थ केयर। अगर आप अपना करियर यहाँ चुन रहे हो, माइनस मेडिकल रैप, ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल डेटा एनालिटिक्स, प्रोडक्शन, फार्माकोविजिलेंस, डिजिटल केयर, तो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि एआई के डिजिटल हेल्थ को सुनना। फ्यूचर फार्मा प्रोफेशनल इंडस्ट्री रेडी हो जाओ, क्योंकि कॉलेज में तो सब आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप एक बार कॉलेज से बाहर निकल गए तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं कहेगा कि भाई आप मुझसे सीखो, वो कहेगा क्या सीख करके आए हो और क्या यहाँ देना चाहते हो। तो बी ए इनोवेशन ड्रिवन एंड थिंक अबाउट द ग्लोबल हेल्थ के लीडर। सोचो कि ग्लोबली बैठा हुआ एक फार्मेसी का बंदा क्या सोचता है, उसके दिमाग के हिसाब से सोचोगे तो अच्छा रहेगा। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो प्रेजेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। राइट, वेल ग्रूम का मतलब नहीं कि हमेशा आप सूट में रहो, बट एक सस्ती सी भी शर्ट है, लेकिन वो प्रेस की हुई शर्ट हो, व्हाइट शर्ट हो, ब्लू शर्ट हो, ये सब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वालों की होती है। राइट, भले ही 200 रुपए की शर्ट पहनो, जरूरी नहीं लुई फिलिप की पहनो आप। राइट, बट दीज आर द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे से आपको अपने को प्रेजेंट करना है। बाल कटे हुए होने चाहिए, दाढ़ी आजकल के स्टाइल में नहीं होनी चाहिए, होनी भी चाहिए तो ठीक से होनी चाहिए। तो जैसे कि मतलब इट शुड नॉट बी वेरी अगली लाइक दैट, ओके। और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ऐसा नहीं हो कि अगर कोई ढीला सा आदमी आ गया, यू हैव टू शो दैट यस यू आर कैपेबल। और आप कैसे करोगे शो कैपेबल, जब आपकी स्ट्रेंथ, जो नॉलेज होगी ना, वो आपके अंदर कूट कूट के भरी होगी, और आपकी जो स्किल्स होंगी बहुत अच्छी होंगी। तो ये चीज़ अगर आप करोगे तो आप प्रेजेंटेबल भी होगी, कैपेबिलिटी भी होगी, नॉलेज भी होगी, और आप आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल। ये आपकी फाउंडेशन स्टेज है। आई रियली थैंक श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आई रियली थैंक द डायरेक्टर सर, कि आपकी फाउंडेशन स्टेज में बहुत ज़्यादा आपको अपने को डेवलप करना है। स्किल डेवलपमेंट में एआई इन हेल्थ केयर, डेटा एनालिटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली करियर रोल्स, जो मैंने आपको एक ग्राफ बना के भेजा, एक एक्सेल शीट भेजी, वो आपके करियर रोल्स है। शुरू में मत सोचो कि मुझे बहुत कम पैसा मिल रहा है, पैसे के पीछे भागोगे तो करियर छूट जाएगा, लेकिन अगर करियर के पीछे भागोगे तो पैसा अपने आप आएगा। और एडवांस स्पेशलाइजेशन कर लो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्री, लर्न द फ्री कोर्सेज विच इज इम्पॉर्टेंट। सोचो कि मुझे ग्लोबल लीडर बनना है। राइट, मैं भी आप जैसे ही था,
राइट, सिंपली ग्रेजुएशन करके आया था, पर दिमाग में ये था कि कुछ आगे करना है, और हम सब में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, हम कर सकते हैं। बट वो एक बार एक वो कहते हैं ना, सोचने का, एक ठानने का है, निश्चय निश्चय करने का है कि अगर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया तो हम ये कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है, हमें पावर ऑफ फार्मेसी बनना है, आप लोगों को बनना है। और ये मत सोचो कि आप ग्वालियर से आ रहे हो तो जो नाइपर का बंदा होगा बहुत तेज होगा। नहीं भैया, नहीं, कोई तेज नहीं होता। इंसान इंसान सब एक होता है, पढ़ाई सब जगह एक होती है, डिपेंड करता है कि आप कैसे आगे उसको लेके जाओ। तो अडॉप्ट करो फार्मेसी के साथ टेक्नोलॉजी, डेटा एंड बिजनेस। एंड थैंक यू प्रोफेसर मिश्रा सर, ऑल फैकल्टीज, स्टूडेंट एंड श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, डायरेक्टर सर। This is my mobile number, this is my email ID, and this is my LinkedIn profile, which you can connect with me in the LinkedIn also. तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो this is all about it. With this, I am stopping the share. Thank you, sir, for your time and valuable knowledge. Thank you As so a much. academician, सर मेरा केवल एक क्वेश्चन है, एआई का इन्वॉल्वमेंट जो है, क्या लर्निंग और नई सोच को कहीं ना कहीं डिफॉल्ट में नहीं लेके जाता? AI का मैं हमेशा बोलता हूँ, AI should be enabling you. AI आपके लिए, अभी आप सपोज करो एम्बेसडर कार है और मैंने आपको रोल्स रॉयस दे दी, या आपको मैंने जो है एक कौन सी गाड़ी आपको मैं हैरियर दे दी, चलो हैरियर दे दी, ठीक है। तो हैरियर तेज भागेगी भी, फोर व्हील ड्राइव भी आपके पास, समझ गए। अब ये आपको डिपेंड करता है, या थार दे दी कि थार से आप एक्सीडेंट कर लो या सही टाइम पे पहुंच जाओ, समझे आप। बट एम्बेसडर से तो आप अपने हिसाब से चलोगे, फिएट से अपने हिसाब से चलोगे। बट थार भागेगी भी, पहाड़ पे भी चढ़ जाएगी, लेकिन वो ठोकने का जो है ना, वो भी आपके हाथ में है कि कितना दबाओ कितना ना दबाओ। तो एआई से सीखो आप, एआई से नहीं सीखोगे तो कोई और सीख लेगा। And don't feel that AI is going to pull you back. No, AI is going to be there, and the person who will be pulled back, who will not learn the nuances of AI, to see that how this master, this should not be a master, how this servant or how this your ये कहते हैं दोस्त आपकी कैसे मदद करे, which is very important. ये दोस्त है, दोस्त को दोस्त जैसा रखो, प्यार से रखो, सीखो, पर उसको अपने अपने में चढ़ने मत दो। वो आपको भगवान ने जो दिमाग दिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सर कि स्पेशली जो कॉलेजेस हैं, कॉलेज में बच्चों को दिल लगा के पढ़ना चाहिए, दिल लगा के पढ़ना चाहिए। कल को बोलोगे नौकरी नहीं है, नहीं, नौकरी है। नौकरी उनके लिए नहीं है जो कि कंपटीशन में पीछे रह गए। एंड कंपटीशन, वो कहते हैं ना कि एक अगर आप लॉन्ग में चलो तो जो खाली, जो आप जाते हो हाईवे पे, तो हाईवे पे सड़क खाली होती है, लेकिन चौराहे पे भरा हुआ होता है। तो चौराहे जैसे गाड़ी मत चलाओ, हाईवे के बाद लेके जाओ, आप देखो कि आगे जो है रोड अहेड बहुत ही क्लियर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, sir. Now I'm requesting to the director, sir, to address the thanks remarks. Over to you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir, for your sparing of your valuable time with us and share valuable knowledge and about the career option after pharmacy, B Pharm, M Pharm, and role of AI in pharmacy. You spare valuable knowledge with us and with our students. And thank you also the CleanMed Academy, Ajiz ji, Om Prakash ji, Ashwin ji. And thank you the coordinator of Misra ji and our beloved student who are listening very carefully to you. And thank you, sir. Thank you. Thank you a lot. Thank you once again, and once Thank you, again, I will be very happy that our students will at least grab 10% of the things, and we will ensure that they should be building, because मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, बिकॉज आपने मुझे एज ए पीओपी भी दिया हुआ है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का लेटर भी दिया हुआ है, राइट, विच इज देयर विद मी। So I want that our student should be really enriching the thing which is the real need of the hour. और आने वाले टाइम में हम HUR का भी एक कोर्स करेंगे, प्रोफेसर रविंद्र मिश्रा, where Dr. Ajit Singh will be coming and they will be talking about the health economics organic outcome research पे भी करेंगे। इस वजह से हम कुछ ना कुछ कोर्स करते रहेंगे बच्चों के लिए, so that we can start developing them for the future. Thank you, sir. Definitely, sir. From the college and the entire fraternity of our Sri Ram College, we are providing a token of gratitude in the form of certificate.
I hope, sir, my screen is visible. Very much. Thank you very much. I'm really much gratitude. Thank you so much. Thank you, sir, for being with us, and hope we connected in the future. Sure. Sir. Thank you once again. Bye bye to everybody. Thank- Namaste. Thank you, Namaste. sir.